Hello friends, myself Professor Chavan and we have started the first chapter from the 11th standard CBSE board. In that we will start our new topic, that is the physics in relation with the another branches of the science. Okay. Physics in relation with other branches of science. So like physics, there are another branches of science. Those are, we know that biology, chemistry, then astrology, geology. Okay, so these are branches are related to the physics. These are depending on the physics. So how these branches are depending on the physics? Because we know that physics is one fundamental language which explains the laws of nature. Okay, and whatever the another branches like the biology, chemistry, these are depending on the phenomenons which are available in the nature. Okay. Suppose we think about the any compound like the NaCl, then what is happening there in NaCl? The Na and Cl, these are the two different elements and they are combinedly making one compound, that is NaCl. Okay. So in that case, why the Na is gets attached with the Cl? Why it is possible? So behind that we have to study the physics. What are the forces which makes the Na to get attached with the Cl? Which are the forces between the elements? That we have to study, and this study of that forces is done in the physics. Okay. We all know that if it is a nucleus, okay, if this is a nucleus, then the atoms are revolving around the nucleus. Okay. Atoms are revolving around the nucleus. So why it is not happening that instead of revolving about this nucleus, the atom gets detached away? यहाँ से दूर क्यों नहीं जाता है? वो अपनी रेडियस चेंज करके वहां से निकल क्यों नहीं जाता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी एक फोर्स है। वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। न्यूक्लियस और एटम के बीच में क्या फोर्स है, ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनके बीच में भी फोर्स रहता है, वो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव टू गो फॉर द स्टडी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड आफ्टर स्टडीइंग दिस एलिमेंट्स वी हैव टू डेवलप द केमिस्ट्री। इसके बाद ही हम केमिस्ट्री का स्टडी कर सकते हैं। अगर हमको पता नहीं होगा कि कौन सा एटम के साथ अटैच हो सकता है, उसके बाद ही हम केमिस्ट्री का डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से हमने बहुत सी अलग अलग थ्योरीज क्रिएट की है, जैसे कि हमारी एनर्जी की थ्योरी है। उसमें हम क्या करते हैं, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, कहाँ पे एनर्जी कम होगी, ये हम कैसे बताते हैं? हमारे कूलम्ब्स लॉ से। हम अपने कूलम्ब्स लॉ से, which was invented in the physics, depending on that we are going to state how much will be the energy level, how much will be the force of attraction between the two atoms. Okay, so depending on that energy we are going to mention how much will be the force of attraction between the two atoms, and we are going to develop the chemistry. Okay. केमिस्ट्री में अलग अलग रिएक्शंस होती है, अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, तो उसमें कौन सा एटम अटैच हो जाता है, उसमें कितनी एनर्जी लगती है, या फिर कौन सी रिएक्शन होने के बाद कितनी हीट डिसिपेट होती है, इन सब चीजों को हमको फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने एक Na और एक Cl का एटम कंबाइन कर लिया तो वहां पे कितनी एनर्जी हो सकती है,
and we know that every atom in the universe is trying to keep its energy at a lower level. Okay, अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास ZnSO4 है, okay, and H2SO4 है, okay, तो फिर हमने क्या किया कि ZnSO4 प्लस H2 ऐसी रिएक्शन कर ली। तो फिर इसमें क्या होता है कि हमारा Zn अलग हो जाता है और H2SO4 का कंपाउंड क्रिएट हो जाता है। ZnSO4 में अगर हमने H2 क्रिएट किया, ऐड किया, तो फिर हमारा Zn अलग हो जाता है और H2SO4 अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ZnSO4 की एनर्जी लेवल देखेंगे तो फिर उसकी एनर्जी लेवल सपोज वी आर कंसीडरिंग एज द 100, ओके, एंड अगर H2SO4 की एनर्जी लेवल देखेंगे तो इसकी होगी 80, ओके। तो फिर किसकी एनर्जी लेवल कम है? H2SO4 की, ओके। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स? दैट every atom, every compound in the universe is trying to make or keep its energy level as much as lower, because if the energy level is lower, then that atom, that compound will be the stable, okay. So to keep itself stable, this compound will always try to make the H2SO4, okay, and Z will get evolved from it. During this, if some heat get dissipated from here, okay, if some heat get dissipated from here, then how much amount of heat will get dissipated, that we can study in the physics by using the energy level between the two atoms. How much will be the energy level between these two atoms, okay. So likewise, we can go for the study of the chemistry, and we can develop the chemistry by using the physics, okay. So जो कुछ भी हम स्टडी कर सकते हैं केमिस्ट्री का, उसके लिए हमको पहले उसका फिजिकल नॉलेज पता होना चाहिए, उस एलिमेंट्स का, उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए जो कि हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। सो द फिजिकल केमिस्ट्री टेल्स अस अबाउट हाउ द इक्वेशंस आर मेड, हाउ द एनर्जी गेट डिसिपेटेड, हाउ इज द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स टेक्स प्लेस, ओके। सो दिस ऑल नॉलेज वी गेट बाय स्टडिंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री combinedly, okay? So that's how we can develop the chemistry. अगर हम बायोलॉजी के बारे में देखेंगे, so we are going to study the different organisms with the help of the microscope. तो फिर माइक्रोस्कोप क्या है? It is the one invention of the physics, okay? हमने देखा excitement of the physics में there are many inventions of the physics which makes us our work easy, which makes our lives easy. So depending on that, if there is no the invention of the microscope, so can we study the biology? Because in the biology we are going to study the very nano things. Like if we have to study the amoeba, then can we see the amoeba with the open eyes? No. Can we see the algae with the open eyes? No. But we have to use the microscope for that purpose. So how the microscope get invented? We have to study the light, we have to study the lens, and combinedly how much will be the light get diffracted after passing through the lens. That we have to study in the physics, and after that study we are going for the invention of the microscope, okay. So in the biology, the microscope is very important application which is depending on the principle of physics, okay. अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर वहां पे कुछ भी देखो, कुछ भी, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं हॉस्पिटल में तो फिर उसके पास स्टेथोस्कोप रहता है। तो फिर स्टेथोस्कोप कैसे इन्वेंट हो गया? हमने उसके ऊपर प्रिंसिपल के, फिजिक्स के प्रिंसिपल लगाए, उसके बाद वो हम इन्वेंट कर सके, okay? अगर हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते, अगर उसको हमारे बॉडी के ऊपर रखने के बाद हमको हमारी अगर स्टेथोस्कोप में हमारी कंडीशन नहीं पता चलती तो फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। अगर ए वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो फिर हमको क्या होता? हम उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी के अंदर की कंडीशन कैसी है, क्योंकि हम स्टेथोस्कोप यूज कर सकते हैं। और हम जो कुछ भी मशीनरीज देखते हैं आजकल, कौन सी भी मशीनरी हम ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं,
अगर कोई भी मशीनरी हो, जैसे कि हमारा कुछ केमोथेरेपी रहती है या फिर कुछ एक्सरे थेरेपी रहती है, गैमा थेरेपी रहती है, ये सभी थेरेपीज के पीछे क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के सिवा हम बायोलॉजी में या फिर मेडिकल में कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हमको लगती है हॉस्पिटल में, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स के ऊपर चलती है, उनके पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल होते हैं। ओके, nowadays there is one branch that is the biomedical. So what is in the biomedical? क्या करते हैं बायोमेडिकल में? बायोमेडिकल में ये स्टडी करते हैं कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट रहता है, हमारी कुछ ब्लड वेन्स रहती है, या फिर हमारा हैंड रहता है, हमारी लेग्स रहती है, उनको आर्टिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए बायोमेडिकल स्टडी करती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए, अगर हम अपना हाथ ऐसे हिला रहे हैं, ऐसा हाथ हिला रहे हैं या फिर ऐसा हिला रहे हैं, तो फिर इसके पीछे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर हम ऐसा हिला रहे हैं तो फिर कौन सा फोर्स है, ऐसा हिला रहे हैं तो फिर कौन सा फोर्स है, ऐसा हिला रहे हैं तो फिर कैसा फोर्स है। इन सब फोर्सेस का हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। ओके, हमारे लेग्स रहते हैं, हमारा हार्ट रहता है, इन सब चीजों को हमने अभी सीखा है कि हम उसको आर्टिफिशियली कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों को सीखते नहीं है, अगर हम ऐसे हाथ हिलाते हैं तो फिर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर ऐसे हाथ हिलाते हैं तो फिर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इन फोर्सेस का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। अगर इन फोर्सेस का हमको नॉलेज हो तभी हम अपना आर्टिफिशियल हैंड बना सकते हैं। हमने देखे है कि अभी क्या होता है, रोबोट्स रहते हैं, तो फिर रोबोट्स में क्या किया जाता है, हमारे सभी बॉडीज का, सभी पार्ट्स का स्टडी किया जाता है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट कौन से डायरेक्शन में जाता है। ओके, अगर हम बात कर सकते हैं तो फिर हमारे पास उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, इस बात का स्टडी किया जाता है। अगर रोबोट बनाने हैं तो फिर उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सभी ऑर्गन्स का स्टडी हमको पता हो, सभी ऑर्गन्स का नॉलेज हमारे पास हो। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा कि हमारे फिंगर्स का मूवमेंट कैसा रहता है या फिर हमारे पैर कैसे मोशन कर सकते हैं, अगर हमको ये पता है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है, इन बातों का पता होने के बाद ही हम कुछ बना सकते हैं। तो फिर हमारा जो हार्ट है, हमारा लेग्स है, हमारा हैंड है, इन सब चीजों को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है, फिजिक्स का स्टडी जरूरी है। अगर हम बनाएंगे तो फिर उसके पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल है। तो फिर बायोमेडिकल में इसी चीजों का फिजिक्स को लेकर स्टडी किया जाता है और आर्टिफिशियली हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। दिस इज द वेरी important branch of the medical science, that is the biomedical, okay, in which we have to study the physics. So without the study of the physics we can't go for the manufacturing of any organs. That is the very important thing. Okay, so there is a branch for the biomedical engineering also, so one can make his knowledge, sound knowledge in that particular area. Okay, so if you are interested you can go for that branch also after your 12th. Okay, this is a very interesting and one research innovative branch. Okay, so this is also one important thing in a physics. अगर हमको कुछ काम करना है, अगर हमको कुछ एक वेट उठाना है, suppose we have to lift the weight of about 50 kg, then what we are doing, we divide that weight into two parts, 25 kg and 25 kg, and after that we are lifting that weight by dividing it into the two parts, which makes us easy. So why we are going to divide this weight into two parts? Because it will be easy for us to work after dividing it into the two parts. So that knowledge come to us indirectly by the physics. अगर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे
तो फिर हम उसको उठाने में हमको बहुत एनर्जी लगेगी। हमको पता है कि हम कितना वेट उठा सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमारे इजीनेस के लिए हमारे उस वेट को डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो फिर एक क्या है, एक फिजिक्स का नॉलेज है, एक इनबिल्ट नॉलेज है हमारे पास, जो कि हम फिजिक्स में से ही हमारे पास आता है। ओके, अगर हम देखते हैं, हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो फिर कैसे बता सकते हो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है? उनके पास कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है पता है आपको? कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट इज वर्किंग ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, दैट वाज इन्वेंटेड बाय द बर्नौलीज, and that Bernoulli's principle says that when the liquid is flowing with a higher speed, then it is having the lower pressure. Okay, so when our blood is flowing with the higher speed, then we have a low blood pressure. That was invented by using that Bernoulli's apparatus for blood pressure checking. Okay, तो फिर बर्नौलीज का प्रिंसिपल यूज करके ही हम बता सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, कम है या ज्यादा है। तो इसके पीछे क्या है? अगेन फिजिक्स है। okay, इसके पीछे क्या है? फिजिक्स है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, स्पेस के स्टडी में जाओगे, तो फिर वहां पे डिफरेंट स्टार्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स है, उन स्टार्स के बीच में अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लैनेट्स के बीच में अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमने पता है अर्थ एक प्लैनेट है, उसका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। वैसे ही अलग अलग स्टार्स का अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत सारे प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स का अपना अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब प्लैनेट्स रोटेट होते हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा उसको रोटेट होने के लिए? जब प्लैनेट एक रोटेशन पूरा करते हैं तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? अगर एक प्लैनेट इतने दिनों के बाद कितने रोटेशंस कंप्लीट कर सकता है, ये सब चीजें हम कैसे बता सकते हैं? फिजिक्स को लेके। उसका हम नॉलेज कैसे ले सकते हैं? फिजिक्स से ही ले सकते हैं। फिजिक्स का स्टडी करने के बाद ही हमको पता चलता है कि एक्चुअली हाउ मच इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट, हाउ मच इज द time that planet will require to complete the revolutions, how much is the distance covered by that planet in that particular month, in that particular years. Also, while launching the satellite, we have to find out how much days it will require to reach up to the moon, how much days is required to reach up to that Mars. Okay, and how much revolutions, how much will be the fuel required, how much will be the speed of that satellite. Okay, these all things we have to learn in a physics. After studying the physics, after getting the knowledge of the satellite, we can go for that launching. How is the direction of that satellite? After reaching the how much height, we have to ignite the another chamber of the fuel. These all things we come to know after studying the physics. So the knowledge of the physics is very important in case of the satellite also, in astrology also. Okay, so अलग अलग फोर्सेस रहते हैं स्टार्स के बीच में, अलग अलग प्लैनेट्स रहते हैं, उनको बाउंड किया जाता है एक गैलेक्सी में। तो फिर गैलेक्सी में कितने स्टार्स है, कितने प्लैनेट्स है, उनका आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर अलग अलग गैलेक्सीज है, उनका अगर कोलिजन हो जाता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर कुछ गिर के आता है, तो फिर वो क्या होता है? वो कुछ क्या होता है, उस प्लैनेट्स के कुछ अलग अलग टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वो क्यों गिर के आते हैं? क्योंकि ऊपर गैलेक्सी में कोलिजन होते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ प्लैनेट्स खत्म हो जाते हैं, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं वो कोलिजन की वजह से खत्म हो जाता है। तो फिर उस टाइम बहुत सारा एनर्जी वहां पे एक्सप्लोड हो जाता है। तो फिर उस एनर्जी की वजह से उन प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। तो फिर ये सब चीजों का हमको स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में। हमको पता नहीं होता है कि क्या गिर गया है ऊपर से, स्पेस से।
ठीक, हम उसको कुछ मतलब हमारे लेवल में वो उसका स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, इन सब चीजों का स्टडी करते हैं, सीरियसली उसको उनका नॉलेज वहां पे यूज करना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है स्पेस में, उसके वजह से ये छोटा वाला एक प्लेनेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और हमको उसका एक टुकड़ा नीचे अर्थ पे आके गिरा है। ठीक, तो फिर इन सब चीजों का हमको कैसे पता चलता है, आफ्टर स्टडिंग द फिजिक्स ओनली। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंस है। मोशन ऑफ द एनी एस्ट्रोनॉट्स while he is in a space, then that thing also he will get trained after he gets the sound knowledge of the physics, क्योंकि वहां पे स्पेस में कुछ फोर्स नहीं रहते, उसका वेट अलग हो जाता है, उसका बॉडी वेट अलग रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, क्योंकि वॉट एवर वी फील about our weight of a body, that is due to the only because of the gravitational force. So when the astronauts goes to the space, he is not aware of the how much the weight he feels. It may happen that he feels his weight the 10 times higher than his imagination. अभी यहाँ पे अगर 70 kg उसका वेट है, तो फिर स्पेस में जाके वो 700 kg भी महसूस कर सकता है, तो फिर उसके बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है। तो फिर इन सब चीजों को कैसे हैंडल करे, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसको ट्रेनिंग देने के बाद ही उसको स्पेस में भेजा जाता है। ठीक, तो फिर स्पेस में मोशन कैसे करनी है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फोर्स नहीं है, तो फिर मोशन कैसे करनी है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है इन सब चीजों का। उसके बाद ही उसको सैटेलाइट से स्पेस शिप से ऊपर भेजा जाता है स्पेस में। ठीक, तो फिर अलग अलग सैटेलाइट रहती है, हम उसके इमेजेस, कुछ हमारे प्लैनेट्स है जैसे कि मून है, मार्स है, उसके इमेजेस हमको यहाँ बैठे बैठे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, क्योंकि हमने सैटेलाइट ऊपर भेजा है, तो फिर सैटेलाइट भेजा है तो फिर उस इमेज कैसे कैप्चर कर लेता है, तो फिर उसके पीछे भी एक साइंटिफिक, एक फिजिकल टेक्नोलॉजी हमने यूज की है। वहां पे जो कुछ भी है इमेज कैप्चर करने के लिए उसका कोडिंग है, उसका कुछ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको यहाँ बैठे बैठे वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या क्या है, पानी है क्या, या फिर अनादर कुछ एलिमेंट्स है क्या, मेटल्स है क्या, इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, फिजिक्स को पढ़ने के बाद ही पॉसिबल है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी में भी फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Okay, that's why we are saying that physics is the fundamental knowledge। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स में, एनर्जी है, वर्क है, लेंथ है, इन क्वालिटीज के ऊपर ही बाकी यूनिट्स डिपेंड है। okay? ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे, इन यूनिट्स के ऊपर ही बाकी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स है। okay? तो फिर फिजिक्स एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जियोलॉजी के बारे में देखेंगे, ओके, विच वी हैव स्टडीड, केमिस्ट्री में देखा क्या है, ओके, फिर एस्ट्रोलॉजी में देखा, फिर बायोलॉजी में देखा, बायोमेडिकल में देखा, क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि किसमें, जियोलॉजी में देखते हैं। ओके, तो जियोलॉजी क्या होता है, पहले जियोलॉजी क्या होता है। देयर आर डिफरेंट स्पेसीज अवेलेबल इन दिस नेचर। कुछ पर्वत है, कुछ पठार है, इन सब चीजों का जो कुछ भी स्टडी किया जाता है इस अर्थ सरफेस का, वो होता है जियोलॉजी। तो फिर ये स्टडी करने के बाद ही हमने एक स्टेटमेंट बनाया है कि किसी भी माउंटेन की हाइट 5000 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमने क्यों कंक्लूड किया है, क्योंकि हमने उसके पीछे कुछ तो फिजिकल प्रिंसिपल्स लगाए हैं। माउंटेन कैसे बनता है, छोटी 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 लेयर बनती है सॉइल की, और ये सॉइल की लेयर ऊपर जाते 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 ही एक माउंटेन बनाती है। तो फिर सॉइल की लेयर बनने में कितने दिन जाते हैं,
या फिर अगर दो सॉइल की लेयर हमने देख ली, ए वाली सॉइल एक लेयर है, ए वाली एक लेयर है, तो फिर इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है? ऊपर की लेयर है, नीचे की लेयर है, तो फिर इन दोनों के बीच में भी फोर्स रहेगा। तो फिर इनके बीच में कितना फोर्स है, ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अगर हमको इस वाले लेयर को ऊपर के इसमें सप्रेस करना है तो फिर हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। फिर सॉइल की लेयर है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है सॉइल के, तो फिर इन पार्टिकल्स के बीच में अपना अपना फोर्स क्या है, ये स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। ये हो गया सॉइल के बारे में। अब डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल है इन अर्थ के सरफेस में, जैसे कि मेटल्स है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, फ्यूल्स है, फ्यूल्स है। तो फिर इन सब चीजों का हमको स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में, क्योंकि मेटल्स है तो फिर इस मेटल कैसे बनता है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स एक साथ आके मेटल बनता है। तो फिर उन पार्टिकल का शेप कैसा रहेगा, उनका क्रिस्टल शेप कैसा रहेगा, ये हमको स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में। उसके लिए हमको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। अगर आप मेटलर्जी ब्रांच देखेंगे तो फिर उसमें हमको उन बातों का नॉलेज मिलता है। तो फिर ये जो ब्रांच है मेटलर्जी, ये जो मेटलर्जी ब्रांच है ये आती है जियोलॉजी के अंडर। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। उनमें कुछ मटेरियल रहते हैं, जैसे कि हमने सोचा है मेटल, नॉन मेटल, फ्यूल्स रहता है। मेटल और नॉन मेटल इसमें क्या डिफरेंस है, हमको पता है डक्टिलिटी है, कंडक्टिविटी है। तो फिर इन सब प्रॉपर्टी इस मेटल में क्यों आती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो फिर ये रीजन हमको फिजिक्स में स्टडी करने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम जियोलॉजी या फिर उस मेटलर्जी को मान सकते हैं। तो फिर मेटल के बारे में नॉलेज मिलता है, नॉन मेटल के बारे में मिलता है। कुछ फ्यूल्स रहते हैं, कुछ सॉलिड फ्यूल्स रहते हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल्स रहते हैं, कुछ गैसियस फ्यूल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है। तो फिर इन सब फ्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो फिर इनको पढ़ने के लिए हमको फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, केमिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है, जियोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। तो फिर इन सब चीजों का स्टडी करने के बाद ही हमको पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे गैसेस भी है बहुत सारे अर्थ के सरफेस में जो कि डिजास्टर्स है, जिसकी वजह से हमको ह्यूमन बीइंग्स को कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फिर इन गैसेस को अवॉइड किया जाता है। तो फिर इन गैसेस का भी स्टडी किया जाता है जियोलॉजी में। तो जियोलॉजी में भी हमको फिजिक्स जरूरी है। सो हमने देखा कि केमिस्ट्री में कैसे जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे जरूरी है, बायोलॉजी में कैसे इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल में कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर जियोलॉजी में कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ वी कंसिडर ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस आर कवर्ड, almost all the branches are covered. So if we think about the physics in our day-to-day life, that we have also taken the example that if we want to lift any object, then we divide that object into two parts so that it will be convenient to us to lift that object. Okay, अगर हमने स्पोर्ट्स के एरिया में देखते हैं फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स से अबाउट स्पोर्ट्स। आप सोचेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या है फिजिक्स, लेकिन स्पोर्ट्स में भी फिजिक्स है। अगर हम हाई जंप लगा रहे हैं, अगर लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, तो फिर हमारा पैर, हमारे हाथ, हमारे बॉडी हमको कैसी रखनी पड़ेगी, हमारी बॉडी का शेप कैसा रखना पड़ेगा, ये हमको कहां से पता चलता है, फिजिक्स से। क्योंकि
कम से कम हमको रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाए हमारे ऊपर और हम लॉन्ग जंप लगा सके। कम से कम रेजिस्टेंस हमारा अप्लाई हो जाए हमारे ऊपर और हम लॉन्ग जंप लगा सके। हमने पढ़ा है इन द डिजाइन ऑफ अ कार, वहां पे एरोडायनामिक शेप रहता है, तो फिर उसका क्या यूज है, उसके पीछे भी फिजिक्स है। हमारे बॉडी का हमको एरोडायनामिक शेप बना के ही हम ज्यादा दूर जंप लगा सकते हैं। तो फिर इसका नॉलेज हमको रहना चाहिए, या फिर हमको लॉन्ग जंप लगानी है या फिर हमको हाई जंप लगानी है। सपोज we have to throw any object at some particular distance. Suppose we are standing here and we have to throw this object here. Okay, then if we throw this object with this, it will come here. Okay, if we throw this object from here, it will drop here. But when it will be possible to get up to our target, that we can study in the physics. That is the one projectile motion. Okay, that projectile motion is studied in the physics. How should be the angle of our hand when we throw any object, then we can get the maximum distance. Okay, यहां से हमको एक एंगल बनाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते वक्त, तभी हम यहाँ तक हमने टारगेट हम पूरा कर सकते हैं। तो फिर फिजिक्स ने बताया है कि यहाँ पे एंगल अगर 45 डिग्री हो, okay, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं उस टाइम अगर उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर 45 डिग्री हो तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये बताया हमने फिजिक्स में। okay? अगर कुछ बॉलर है, एक बॉलर है, उसको बॉल स्पिन करना है, तो फिर स्पिन करने के लिए उसको किस तरह से बॉल डालना पड़ेगा, इसका नॉलेज उसको पता चलेगा जब वो उसका स्टडी करेगा। तो फिर वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसका फिजिक्स स्टडी कर रहा है उस बॉल का, कि कैसे स्पिन करने के बाद आउट स्विंग होगा, कैसे स्पिन करने के बाद इन स्विंग होगा। उसका नॉलेज उसको आएगा वो जब उसका फिजिक्स ओरिएंटेड स्टडी करेगा। अगर एक फुटबॉलर है, अगर फुटबॉलर ने क्रिकेट प्लेयर का शूज पहन लिया, तो फिर वो ज्यादा अच्छी तरह से भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि शूज के जो स्पाइक्स रहते हैं, शूज के नीचे स्पाइक्स रहते हैं। ओके, एक शूज है तो फिर उसके नीचे ऐसे स्पाइक्स रहते हैं, आपने पहना है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे क्रिकेट प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर के शूज के स्पाइक्स में, तो फिर फुटबॉल प्लेयर के शूज के स्पाइक्स में ज्यादा स्पाइक्स दिखाई देते हैं और उसका लेंथ भी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल प्लेयर को ज्यादा दौड़ना पड़ता है, ज्यादा रनिंग करना पड़ता है, क्योंकि पूरे ग्राउंड में उसे घूमना पड़ता है और उसके लिए उसका स्पीड भी अच्छा रहना चाहिए। अगर आप क्रिकेटर के शूज का स्पाइक्स देखेंगे तो वो इतने ज्यादा नहीं रहते, वो हमारे जो रहते हैं शूज उसी हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज वो पहनते हैं। लेकिन फुटबॉलर के शूज ऐसे अलग रहते हैं, उनके स्पाइक्स ज्यादा रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दे हैव टू ओवरकम द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड सरफेस मोर इजीली। दैट्स व्हाई दे कैन रन वेरी फास्ट। सो इसके पीछे भी उनके ऐसा शूज पहनने के पीछे भी फिजिक्स है। उनका ऐसा शूज पहनने के पीछे भी फिजिक्स है। अगर हमको एक लॉन्ग जंप लगानी है स्विमिंग टैंक में, सपोज we are standing here and here is the tank. Okay, then while jumping from here in that tank, if we have to make the somersault, ऐसे हमको ऐसे ऐसे आके यहाँ पे गिरना है, तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पता है स्विमर क्या करता है, जब यहां से गिरता है, यहां से जब गिरता है तो फिर एक अपने बॉडी का एक ऐसा एंगल बनाता है, ऐसा आर्क शेप बनाता है। और ऐसा आर्क शेप बनाने के बाद वो अपना पैरों से ऐसा छलांग मारता है। तो फिर आर्क शेप क्यों बनाता है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसे आर्क शेप बनाना पड़ता है क्योंकि वो जब आर्क शेप बनाना पड़ता है तो उसके बॉडी के ऊपर कपल ऑफ फोर्स एक्ट होता है और कपल ऑफ फोर्स उसको रोटेट करने में हेल्प करता है।
हम देखेंगे रोटेशनल मोशन चैप्टर में कि कपल ऑफ फोर्स हेल्प्स अस टू रोटेट इन और हेल्प्स एनी बॉडी टू फॉलो इट्स rotational path of motion. Okay, so that's why he has to make the arc shape of his body and then only he jumps. अगर उसको जंप करने वक्त अगर 6 बार समरसॉल्ट करनी है, ऐसा करके नीचे जाना है, समरसॉल्ट करनी है, तो फिर उसको अपनी बॉडी को कैसा करना पड़ेगा? अगर उसने पहले ऐसा आर्क बनाया है तो नीचे आते वक्त क्या करता है, वो अपने बॉडी को ऐसा घुमा लेता है, ऐसा घुमा लेता है। ओके, अपनी बॉडी को ऐसा घुमा लेता है और ऐसा नीचे जाके अपने पैर पकड़ लेता है, पैर अपने सिर के तरफ लेके आता है। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो अपनी बॉडी की लेंथ कम करता है, अपने जो आर्क बनाया है उस आर्क का रेडियस कम करता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ओके, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ती तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसने अपना आर्क शेप बहुत रखा है। ओके, उसने अपना आर्क शेप बहुत रखा है। तो फिर हमको पता है कि क्या होता है रोटेशनल मोशन में, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। हमको पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये हम पढ़ेंगे। ओमेगा क्या है? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है? इट इज द रेडियस। तो फिर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए, तो फिर अगर हमने रेडियस कम कर ली तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से अगर वो अपने बॉडी को रेडियस कम करता है तो फिर क्या होता है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। तो फिर ये सब चीजें अगर उसको पता है कि हम अगर अपनी बॉडी की कम रेडियस बनाएंगे, हम अपनी बॉडी को कम से कम स्पेस में अगर ऐसा अकड़ के लेंगे, तो फिर हम उसको अच्छी तरह से ज्यादा सर्कुलर मोशन ऐसा समरसॉल्ट कर सकेंगे। ओके, तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है? पहली स्टेप, उसको पहले तो एक आर्क बनाना पड़ेगा अपने बॉडी का छलांग लगाते वक्त, और उसके बाद ही वो जंप लगाएगा। और जब जंप लगाएगा उसके बाद वो अपने बॉडी को ऐसा खींच लेगा, एक अपनी बॉडी की एक सर्कुलर शेप बनाएगा, छोटी से छोटी रेडियस बनाएगा, और उसके वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा समरसॉल्ट लगा पाएगा। तो फिर इन चीजों का अगर उसके पास नॉलेज है तभी वो ये कर सकता है। तो फिर स्पोर्ट्स में भी हमने देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट अगर हमको दूर फेंकना है तो फिर हमको क्या करना है, कितने एंगल से उसको फेंकना है, ये जरूरी है। अगर हमको फुटबॉल खेलना है तो फिर हमको ऐसे शूज पहनना जरूरी है। अगर हमको ज्यादा से ज्यादा समरसॉल्ट लगाने हैं तो फिर हमको यहाँ पे आर्क बनाना जरूरी है, अपने बॉडी शेप को कम से कम रेडियस में एक्वायर करना जरूरी है। उसके बाद ही हम ज्यादा से ज्यादा समरसॉल्ट लगा सकते हैं। तो फिर कुछ भी हो इस दुनिया में, कौन सा भी फिनोमेनन हो, कौन सी भी थिंग हो, उसके पीछे फिजिक्स है। तो देयर इज नो इन थिंग अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड विदाउट द फिजिक्स। हमने देखा केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस है, एस्ट्रोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस है, मेटलर्जी में भी इंपॉर्टेंस है, जियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस है, स्पोर्ट्स में भी इंपॉर्टेंस है। तो फिर कहां पे नहीं है फिजिक्स? इसीलिए फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फिजिक्स इज द बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द नेचर। फिजिक्स इज द बेसिक knowledge of the nature in which we have to study the different laws of nature and different rules of nature. And once we get the knowledge of the different laws of nature, different rules of nature, then we can study, we can prefer any application, we can go for any field like the biology, chemistry or any geology easily. We can study these all branches easily. So that's why physics is related to all the branches of the science. Okay? Physics has to be learned to learn any branch of the science. If one don't have the knowledge of the physics, it will be difficult for him to go for that total knowledge of that particular branch. Okay? So that's why the physics is very important branch of the science, and
there is nothing in the world which is without physics. Okay, so that's all from the physics in a relation to the another branches of the science. Okay, remember, there is nothing in the world which is without physics. Okay, thank you.